السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کے معجزات اور ان کے واقعات پر مبنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، کیونکہ جو بھی رسول آیا اس نے اپنے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم الہی سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کس کام کا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، تو لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور ان کو بند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے خاص دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے ابن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں خدا کی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں، بت پرستیوں اور انحوارات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص اور خاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، ایلوپس، برتلوما، متی، یعقوب بن حنفا، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسکریوتی۔ یہ آخری حواری یہودا اسکریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لے آئے ہو تو خدا سے ڈرو۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں تاکہ ہمارے دل یقین سے سرشاد ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نیت سے واقع ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہت اچھا رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان نازل کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد اگر تم سب میں سے کسی نے بھی میرا انکار کیا تو اس کے بعد میں تم سب پہ ایسا عذاب نازل کروں گا کہ میں نے عالمین پہ سے کسی پہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دسترخوان نازل ہوا، اس میں کچھ مچھلیاں اور روٹیاں تھیں۔ چونکہ وہ اتوار کے دن نازل ہوا تو ان لوگوں نے اس دن کو عید کا روز قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں سے بھی ہے کہ یہ دن ہمارے لیے، جس دن دسترخوان نازل ہوا، وہ دن ہمارے لیے عید کا موجب ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و شردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزاتی ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان میں سے 300 لوگوں کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا، جو کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندی چیزیں کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے اور فریاد کی،
लेकिन 3 दिन बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग के लिए सबसे अहम काम सहरो सियाह था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था। वो हमेशा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नज़र आता था। एक सफ़र में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में रवाना हुआ। दोनों चलते चलते एक दिन एक दरिया के किनारे पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से कहा बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। उस छोटे कद के बंदे ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते हुए देखा तो उसने भी यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब वो चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बराबर में पहुंचा तो खुद पसंदी के जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा कि ये ईसा रूहुल्लाह हैं, कि ये भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, कि उन्हें मुझ पर क्या फजीलत हासिल है। और उसी लम्हा उसके पाँव बेकरार हुए और वो पानी में गरक होना शुरू हो गया। उसने फरियाद बुलंद की कि ए रूहुल्लाह, मेरा हाथ थाम लें और मुझे गरक होने से बचा लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए मेरे दोस्त, तूने क्या कहा है जो तू पानी में डूबने लगा था? हंसकर उस दोस्त ने कहा, मैंने कहा था रूहुल्लाह भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। यानी मुझे खुद पसंदी ने अपने नरगे में ले लिया था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मुकाम पर समझा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करार नहीं दिया था, लिहाजा तेरे ऊपर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ है। जो कुछ तुमने कहा है उससे तौबा करो। उस शख्स ने तौबा करी। उसके बाद उस शख्स को वो मुकाम व मर्तबा मिल गया जिस पर उसको फाइज किया हुआ था। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सहरो सियाहत करते हुए एक गांव बलागदा तक पहुँचे। वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ सब इंसान, परिंद चरिंद सब मौत की नींद सो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है कि ये सब लोग अज़ाब इलाही की वजह से मौत की घाट उतर चुके हैं, क्योंकि ये लोग अगर यके बाद दीगरे मरते तो ज़रूर एक दूसरे को सुपुर्द खाक करते। हवारियों ने अर्ज़ किया, ए रूह खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि वो उन्हें ज़िंदा कर दें ताकि नाजिल होने वाले उस अज़ाब की वजह बयान कर सकें जिसकी जद में ये लोग आए, ताकि हम लोग उस काम से परहेज़ करें जो लोग ये करते रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उन सब को ज़िंदा करने की दरख्वास्त की तो आसमान से आवाज़ आई कि इन सब को आवाज़ दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और फरमाया, ए गांव के लोगों, उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ और उसने कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर क्या ऐसा अजाब आया है कि तुम इस अजाब में मुब्तला हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा कि मैं 4 चीज़ों की वजह से मुझ पे और हम लोगों पे अजाब नाजिल हुआ है। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, खुदा से कम खौफी और दुनिया से दिल वाबस्ती, लंबी चौड़ी आरजुएं और दुनिया के खेल कूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस तरह माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जिस वक्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं, और जब पुष्ट कर देती है तो हम रोते हैं और गमज़दा हो जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग ताबूत की कैसी परस्तिश करते थे। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगार वो की पैरवी और अता करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे काम की आकाबत कैसे अंजाम पजीर हुई। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा कि हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हम हाविया में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, यह हाविया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया एक सिज्जीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, यह सिज्जीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ये आग से पिघले हुए पहाड़ हैं, ये ता क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे उस वक्त तुम लोगों ने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो ताकि हम नेक काम अंजाम दें और बिल्कुल पारसा बन जाएं। हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके हाल पर बहुत अफसोस है। क्या हुआ है कि इन हलाक होने वाले तमाम लोगों में से किसी ने मुझसे गुफ्तगू नहीं की सिवाय तुम्हारे। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ए रूह खुदा, इन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उन लोगों के साथ रहता था लेकिन मैं उनमें से नहीं था और मैं उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उन लोगों पर अजाब आया तो मैं भी उनमें गिरफ्तार हो गया था।
इस वक्त मैं बाल की मानिंद बारीक तार से दोज़ख के किनारे लटका हुआ हूँ। मालूम नहीं है कि वहाँ मैं दोज़ख में गिरूंगा या फिर वहाँ से निजात पा जाऊंगा। शायद उस शख्स को अजाब अमल बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर को तर्क करने की वजह से मिला होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए खुदा के बंदो, ये दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेज़ों पर सोना बहुत अच्छा है, अगर वो दुनिया और आखिरत में सलामती के हमरा हों। बनी इसराइल के दरमियान एक ऐसा ख़ानदान आबाद था कि उनमें से जो कोई भी शख्स रात भर इबादत में गुजारता और राज़ो नियाज में गुजारता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती। उसी ख़ानदान के एक शख्स ने 40 रातें खुदा की इबादत में गुजारी और उसके बाद दुआ की तो उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। वो शख्स बहुत परेशान हुआ। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे शिकायत की और उनसे इल्तिमास की कि वो उनके लिए दुआ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद उस परेशान हाल बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, ए ईसा, तेरा ये बंदा सही राह पर गामज़न होकर मुझसे दुआ नहीं मांगता है। ये मुझसे दुआ तो मांगता है लेकिन उसके दिल में तेरे पैगंबर होने के बारे में शक है। इस वजह से अगर वो इस कदर दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उसकी उंगलियों की पोरे मिट जाएं, तब भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सारा माजरा उस बंदे के सामने रखा। उस बंदे ने अर्ज़ किया, ए रूह खुदा, हकीकत वही है जो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान की कि मैं आपकी पैगंबरी के हवाले से मशकूक था। आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि ये शक बरतरफ हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसके दिल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैगंबरी का शक दूर हो गया। इसके बाद उसकी तौबा कबूल हुई और वो उसके बाद अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों की तरह 40 रातें रियाज़ो नियाज के बाद उसकी दुआ भी कबूल हुई। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर आप लोग और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर किसी इस्लामी स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।